Hello students, good afternoon. How are you all? I hope you all are doing absolutely good. So students, in previous live class we have discussed this chapter towns, traders and craftsmen. So this is chapter number 6 from your SST book, and we have learned that what are the different towns, traders and craftspersons are. Okay, so we have completed different types of towns developed during the medieval period, and then we discussed that there were capital towns, temple towns and pilgrimage towns, and we have learned that other kinds of towns are known as port cities and then trading towns, craft towns and small towns. So in the previous live class we have discussed all kinds of towns in the medieval period. In today's video students, I am going to tell you about all the traders and artisans in the medieval period. Okay, so let's start the class. Please pay attention and get ready. I am reading under the headings Traders and Artisans, last paragraph. There were many types of traders, including Banjaras. Since traders had to pass through Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds, association to protect their interests. Okay, so in medieval period, the traders were also known as Banjaras. Banjaras भी उन्हें कहा जाता था बिकॉज वो कारवन में एक लाइन से वो ट्रैवल किया करते थे, एक ग्रुप में ट्रैवल किया करते थे, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर ग्रुप. अगर वो अकेले ट्रैवल करते तो हो सकता है उन्हें कोई लूट ले या कोई मिस हैपनिंग हो जाए. दैट्स वाई दे ट्रैवल इन अ बिग ग्रुप सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर important things which they are going to sell. The towns on the west coast were home to Arab, Persia, Chinese, Jewish, and Syrian Christian traders. At the same time, Kabul became politically and commercially important from the 16th century onwards. Trading of horses and slaves was done from here. Spices and textiles were most traded items. So students, in medieval period में हम देखते हैं कि अरब, पर्शिया और चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं. और उस समय काबुल जो हमारा नेबर है अफ़गानिस्तान, उसका कैपिटल, उस टाइम काबुल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट था. वाई? बिकॉज 16th सेंचुरी में वहाँ से हॉर्सेस और स्लेव्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता था. मीन्स पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में हॉर्सेस सेल किया करते थे, स्लेव्स को एक्सपोर्ट करा करते थे. स्लेव मीन्स बंदी जो होते हैं, जो गुलाम होते हैं, उन्हें एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था काम करने के लिए. और स्पीशीज एंड टेक्सटाइल्स वर ऑल्सो ट्रेडेड आइटम. सबसे ज़्यादा क्या किया जाता था? स्पाइसेस, मसालों को सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता था. एंड टेक्सटाइल्स मीन्स ऑल द क्लोथ्स, अलग अलग तरह के कपड़े. The craftsperson and artisans made goods of different kinds used by the kings and nobles as luxury items. The Mughals established workshops in the craftsmen practicing different craft work. So बेटा जो क्राफ्टमैन हुआ करते थे, क्राफ्टमैन मीन्स जो हाथों से लग्जरी आइटम्स बनाया करते थे. फॉर एग्जाम्पल डेकोरेटिव सीनरी एंड ऑल, डेकोरेटिव पीस ऑफ थिंग्स, वुडन के नक्काशी करके जो बनाया करते थे, उनको हम क्राफ्ट्समैन कहा करते थे. जो कि किंग्स और क्वींस लोगों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग उसे खरीद सकते थे. सो दे मेक दोज लग्जरी आइटम्स. लग्जरी का मतलब ये होता है समथिंग विच इज़ वेरी कॉस्टली. सो मुगल्स ने एक वर्कशॉप भी बनाई जहाँ पे क्राफ्टमैन अपने काम कर सकें. द पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी consisting of goldsmith and bronzesmith, blacksmith, masons and carpenters was essential to the buildings of temples, places and big buildings. They also helped in the construction of water reservoir. Weavers were also important to make clothes from cotton or silk. सो मुगलों ने जो भी वर्कशॉप बनाई, और उसमें क्या था कि पंचाल कम्युनिटी, विश्वकर्मा कम्युनिटी, और जो कि गोल्ड स्मिथ सोनार हुआ करते थे, ब्रोंज स्मिथ जो कॉपर के तांबे की चीज़ें बनाए, ब्लैक स्मिथ जो लोहार हुआ करते थे, और उसमें मैसन भी होते थे, मजदूर भी होते थे, कारपेंटर्स भी होते थे, जो कि टेम्पल्स बनाते थे, अलग अलग बिल्डिंग्स बनाते थे, और
वाटर रिजर्वायर जहाँ पे पानी जमा कर सके वो भी बनाया करते थे। सो वहाँ पे वीवर्स भी होते थे, मतलब बुनकर भी होते थे जो कि कपड़े वगैरह बनाते थे सिल्क से और कॉटन से। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी द मेजर टाउन्स ऑफ दैट एरा। मेडिवल पीरियड में जो मेजर टाउन थे, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, Surat was situated on the bank of river Tapti in Gujarat and was important port commercial town. Ships from various countries docked at Surat. So बच्चों, सूरत उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन हुआ करता था क्योंकि वो रिवर तापी के पास था, एंड रिवर के पास होने से वहाँ पे आसानी से बोट्स और शिप्स आ सकती थी डिफरेंट कंट्रीज से सामान लेकर। It was an emporium of western trade during the Mughal period along with Cambay or Khambat. It was gateway for trade with West Asia via the Gulf of Hormuz. From Surat, various ships of Mecca pilgrimage were also sent. सो बेटा, मुगल पीरियड में भी सूरत को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी क्योंकि वहाँ से वो एक ट्रेडिंग का हब था, वहाँ पे वेस्ट एशिया से सामान आया करता था सूरत में। और सूरत जो है कि है गुजरात में है, जो कि एक वेस्ट साइड है, और वहाँ से अरेबियन सी के रास्ते हम अरब भी जा सकते हैं। सो उस समय जो हज करने के लिए जो पिलग्रिमेज जाते थे, जो मुस्लिम हज करने के लिए अरब जाते थे, उनको भी सूरत के रास्ते भेजा जाता था। दैट्स वाई सूरत वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टाउन इन दैट एरा। In the 17th century, the Portuguese, Dutch, and English had their factories and warehouses at Surat. Textiles of Surat were famous for their gold lace borders, zari, and had market in West Asia, Africa, and Europe. सो बेटा, 17th सेंचुरी में जब पुर्तगाल से लोग आते हैं, डच से लोग आते हैं, जो कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती लोग जो आते हैं, तो सूरत में अपनी फैक्ट्रीज खोलते हैं, अपने गोडाउंस खोलते हैं, और वहाँ पे सूरत फेमस है अपने टेक्सटाइल के लिए, अपने काम के लिए, अपने कपड़ों के लिए। वहाँ पे लहंगे अच्छे अच्छे बनते हैं और भी इम्पोर्टेंट महंगे महंगे कपड़े बनते हैं। तो उस समय भी वो बना करते थे, एंड वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में वो एक्सपोर्ट किया करते थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, स्टूडेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर ओन बुक ऑल्सो, जिससे आप अच्छे से देख सको। ओके, Surat enjoyed great prosperity up to 18th century, but with the decline of Mughal Empire and the rise of Bombay as major port, its importance was declined. Nowadays, Surat is a trade center for diamonds. सो सूरत 18th सेंचुरी तक काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी बना रहा, लेकिन मुगल्स के जाने के बाद सूरत की इम्पोर्टेंस कम हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को अपना मेजर हेडक्वार्टर बनाया, बॉम्बे को एक पोर्ट सिटी बनाया, और दैट्स वाई सूरत की जो इम्पोर्टेंस है वो पोर्ट सिटी के हिसाब से कम हो गई। अब सूरत को क्या, किस चीज़ के लिए जाने लगा? सूरत जो है वो अपने डायमंड्स के लिए जाने लगा। ओके, नेक्स्ट टाउन विच वॉज पॉपुलर इन दोज एरा वॉज हम्पी। अब चलिए हम्पी के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट वाज हम्पी, विच सिटी वाज हम्पी। सो हम्पी वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा इन कर्नाटका। हम्पी कर्नाटका में है, तुंगभद्रा रिवर के पास। इट वॉज कैपिटल ऑफ द माइटी विजयनगर एम्पायर। हम्पी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन स्पाइस ट्रेड। सो हम्पी विजयनगर का कैपिटल सिटी भी हुआ करता था, एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉटन एंड स्पाइस ट्रेड। कॉटन मीन्स रुई और स्पाइस मीन्स मसालों के लिए वो फेमस हुआ करता था। वाटर वॉज मेड अवेलेबल थ्रू वेल्स एंड टैंक्स। वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हुआ करता था, वेल्स से मतलब कुओं से और टैंक से। Traders from Europe, Arabia, Burma, China, and various islands in the Indian Ocean visited Hampi to buy and sell goods. Hampi was a well fortified city having beautiful temples. सो बच्चों, हम्पी में हर जगह से ट्रेडर्स आया करते थे, यूरोप से, अरेबिया से, बर्मा से, चाइना से, और इंडियन ओशन में दूसरे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ से। हम्पी में वो आके अपने सामान बेचा करते थे और दूसरे सामान खरीदा करते थे। सो हम्पी वॉज अ फोर्टिफाइड सिटी। फोर्टिफाइड सिटी मीन्स वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा किला हुआ करता था, एंड इट हैज़ ब्यूटिफुल टेम्पल्स। हम्पी में बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल हुआ करते थे। Archaeologists have found a platform popularly known as Mahanavami Dibba from the where king and his family watched the dance and other performance. So archaeologist means जो सर्च करते हैं हिस्ट्री के बारे में,
उन्होंने वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी पाया, एक स्टेज भी पाया जहाँ पे बैठकर राजा का परिवार डांस देखा करता था. ओके. Temples were the hub of cultural activities and Devdasis performed before the deity. Royalty and mass in the many pillared halls in the Virupaksha temple. Hampi fell into ruin due to the defeat of Vijayanagar in 1965 by the Deccan Sultan. So हम्पी में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स हुआ करते थे, तो एक वो रिलीजियस प्लेस हुआ करता था. वहाँ पे देव साथी परफॉर्म करते थे, डांस करते थे भगवान के आगे मंदिर में, और बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे आके उसको देखा करते थे. बट हम्पी का जो है वो विजयनगर हम्पी में जब डेक्कन सुल्तान का आना हुआ तो हम्पी सिटी को ख़राब कर दिया गया, उसे रुइन कर दिया गया, क्योंकि अब दूसरे रूलर्स आ गए थे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिटी वॉज Masulipattnam. Okay, so now let's see what is Masulipattnam. Masulipattnam was situated on the bank of the river Krishna. बेटा मसूलीपट्टनम भी साउथ में है, जैसा कि नेम से हमें लग रहा है. एंड इट वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर कृष्णा. कृष्णा नदी के पास ये सिचुएटेड है. फॉर एग्जाम्पल अयोध्या जो है वो सरयू नदी के पास सिचुएटेड है. मसूलीपट्टनम जो है वो कृष्णा नदी के पास सिचुएटेड था. वॉज फाउंडेड इन द सो मसूलीपट्टनम के बारे में हमें बता रहा है कि इट वॉज फाउंडेड इन द 14th century. Its gateway was decorated with the eyes of fish, so it was termed as मछलीपट्टनम. ओके, सो मछलीपट्टनम का नाम इसलिए बनाया गया क्योंकि उसका जो रास्ता था, उसका जो एंट्रेंस गेट था, उसको मछली के आँख से डेकोरेट किया गया था. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मछलीपट्टनम, और बाद में उसे मछलीपट्टनम भी कहा जाने लगा. It was the main port of the kingdom of Golconda. The port at Machilipatnam was built by the Dutch on the permission of Qutub Shahi Sultan. So Machilipatnam was also a port country. वो भी एक port city था. port city जहाँ पे नाव से और शिप से सामान आ सके. So मछलीपट्टनम में जो पोर्ट बनाया गया वो डच द्वारा बनाया गया, क्योंकि कुतुब शाही के ऑर्डर पे दिया गया, परमिशन पे दिया गया. It was famous for the production of fine chins, which is मच डिमांड इन द साउथ ईस्ट एशिया. सो चिन्स बनाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था. चिन्स होता है प्रिंटेड मल्टी कलर कॉटन फैब्रिक विद द ग्लेस्ड फिनिश्ड यूज फॉर कर्टन्स. सो चिन्स जो है एक टाइप का कपड़ा होता है जो कि काफ़ी कलरफुल कपड़ा होता है, और उसमें एक शाइन होती है, एक चमक होती है. स्पेशली वो पर्दे, खिड़कियों में जो पर्दे होते हैं, कर्टन्स होते हैं, उसको बनाने के लिए वो यूज़ होता है. तो किन्स को एक्सपोर्ट किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया में. ओके, मसूलीपट्टनम वॉज फेमस इवन टुडे, फेमस फॉर इट्स कलमकारी वर्क विच रिफर्स टू अ मेथड ऑफ पेंटिंग नेचुरल एंड वेजिटेबल डाइज ऑन कॉटन सिल्क फैब्रिक विद बैम्बू पेन. द कलमकारी टेक्सटाइल्स वर एक्सपोर्टेड टू द Saffron Empire in Persia due to the development of Bombay and Calcutta and Madras as new ports. Masulipattnam lose its importance. So मसूलीपट्टनम आज भी फेमस है अपने कलमकारी के लिए. कलमकारी का मतलब होता है पेंटिंग विद नेचुरल डाई, कुदरती कलर से पेंटिंग करके उसको अच्छे से ड्राइंग बना के उसे बेचने के लिए. बट आगे चल के बॉम्बे और कैलकाटा और मद्रास न्यू पोर्ट्स बन गए, जिसकी वजह से मसूलीपट्टनम की इम्पोर्टेंस जो है वो आने वाले समय में काफ़ी कम हो गई, क्योंकि दूसरे सिटीज बन गए. ओके, स्टूडेंट्स, चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर. कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेस ऑन योर ओन. वी विल डिस्कस इट अगेन. आप इसे कंप्लीट कर लो, चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया. यू ऑल कैन डू दिस, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर फॉर डूइंग दिस. सो थैंक यू सो मच फॉर participating till here. I hope you have understood. Okay, we will meet you again in the next video. और वीडियो देखने के बाद अब अपना नेम कमेंट कर देना, so that I can mark your attendance. Okay, so take care of yourself. Thank you. Bye bye.